Very good morning to all of you students. Beta, in last class we have already started with chemical bonding, but as you all know, I'll quickly revise the initial part what we did, in last class, and I wanted you to write a few things as notes was not given to you all, so you are not able to write that. So today we'll complete that part, okay? Now, beta, whenever we see in chemical bonding, beta, first we studied which bond, beta, electrovalent bond, or which bond, ionic bond. Now, in exam, you have only dot and cross structure. So when they ask you dot structure, then what you are going to do? You have to write this configuration 2811 one electron will get transferred here. You have to be very careful. In exam, they ask you what is the structure of sodium ion. Then you will write 2,8. What is the electronic configuration of chloride ion? Then it will be what? 2888. And this is Cl minus. You have to be very careful. You forget to put the square bracket. You should put the square bracket also. You have to show this charge. And this is your sodium chloride. Now, very important thing, बेटा आप मुझे बताओ ए इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड अच्छा बेटा अभी आपको पता है हम लोग ने पीरियोडिक टेबल में कुछ पढ़ा था बेटा मेटल इसमें क्या कर रहा है इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट इज व्हाट बेटा लूजिंग इलेक्ट्रॉन so it is electropositive non-metal is gaining electron so it is what beta electronegative so what they will have high दोनों के बीच में for covalent bond to form high difference in what beta electronegativity high difference in electronegativity between the two elements right now sodium is electropositive this is electro high difference is there or not in electronegativity so we'll write this ये बेटा मैंने वीडियो भेजा था तुझे तुमने देखा कोई भी वीडियो नहीं ना हाँ तो कोई बात नहीं अच्छी बात है हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाजू में लिखना है सुनो ए मुझे मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी सप्लाई दैट एनर्जी वी व्हाट वी कॉल दैट एनर्जी पोटेंशियल वेरी गुड तो मेटल हूं मुझे इलेक्ट्रॉन लूज करना है सो आई शुड माय आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी हाई और लो व्हेन आई कैन लो सो अच्छा एंड क्लोरीन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी so non-metal should have high electron affinity and metal should have low ionization potential तो आप इसके नीचे एग्जाम में एक एमसीक्यू आता है बेटा ओके दिस सोडियम तुम्हारा मेटल है ना बेटा सोडियम इज मेटल ना सो इट शुड हैव व्हाट बेटा लो आईपी लो और ये क्लोरीन तुम्हारा क्या था बोलो बेटा नॉन मेटल ना तो नॉन मेटल को क्या होना चाहिए बोलो बेटा हाई ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईए या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखूं क्या पूरा याद रहेगा आपको अच्छा बेटा एक एमसीक्यू माही वे एक क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में ठीक है सुन ले व्हाट इज द बेस्ट कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऑप्शन में दिया रहेगा लो आईपी ऑफ मेटल हाई ईए ऑफ नॉन मेटल हाई आईपी ऑफ मेटल लो ईए ऑफ नॉन मेटल तो आपका आंसर क्या होगा बोलो Sir, question repeat okay Sir, question for formation of electrovalent bond for formation of what beta electrovalent bond ये electrovalent bond ही बना रहे हैं ना बेटा so metal should have and non-metal should have ये आंसर था हो गया समझा ना लिखो ये जिसने नहीं लिखा है लिखो ठीक है ये पॉइंट ओके और एक क्वेश्चन सुनो when an electrovalent bond is formed then between the two combining element there should be low difference in electronegativity or high difference in electronegativity समझ में आ गया तो ये पॉइंट भी दिया यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना बेटा जो जो पॉइंट बोलता हूँ वो अच्छे से ध्यान रखने का अभी भी बेटा फिर से मैं बता रहा हूँ सुन लो For your entire 10th standard, you will refer this one-page notes given by me, and then you will directly follow the board booklet. Apart from that, you are not supposed to follow anything. You are not supposed to even open the textbook. You are not supposed to do any other material. All the material which I will be doing, I will be providing you all. Okay? Clear है? नून जरूरत नहीं है. ठीक है? हाँ OLX पे भेज दे. ठीक है बेटा मैं क्या करूंगा बेटा चलो बेटा बस ओके इनफ वी आर नॉट हियर टू वेस्ट टाइम दिस गर्ल हियर पे अटेंशन
Now, beta, we did calcium oxide. Beta, calcium is donating 2 electron. Can you see? And it is. So you have to be very careful when they ask this dot and cross structure. Formation of magnesium chloride. Electron dot structure. Beta, here you have to draw 2 chlorine. One will go here, one will go here. Mg2 plus. Here, don't forget to put this square bracket. And here also outside 2 you have to write. This was all about your magnesium chloride. Clear? Okay. Beta, so electrovalent bond is formed between metals and what are held together here? Can you see these ions are held together? So which particles are present in electrovalent bond? Ions. Which particles are present? Ions. ठीक है ना बेटा? Okay. Now बेटा I will teach. अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या होता था? अच्छा बेटा उसमें भी मैं तुमको ऐसा बता देता पहले यहाँ पे ये वाला पार्ट बताऊंगा and I'll make you write few things. Okay. Sharing. Suppose बेटा there is a tug of war between these two fellow. Both same है. तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे भी शिफ्ट होगा क्या? सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स आर. इज देयर चार्ज सेपरेशन टेकिंग प्लेस? एग्जांपल बेटा भी यहाँ पे क्या होगा? एच एच दोनों सेम है. सी एल सी एल. आर यू गेटिंग इट बेटा? ओ ओ एन एन बेटा राइट ना. यहाँ पे आप लोग और भी लिख सकते हैं बेटा. लिखो यहाँ पे O2 N2. ये नहीं लिखा है यहाँ पे. ठीक है ना बेटा? वहां पे लिखो. यहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो रहा है. अब यहाँ पे देखो बेटा टग ऑफ वॉर हो रहा है बेटा. यहाँ पर ऐसा है. इसके सामने का ऐसा बंदा है. देखो माय गॉड. यहाँ पे अगर मैंने रखा रहता तो अभी बेटा टग ऑफ वॉर होता तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाता? टुवर्ड्स दिस स्ट्रॉन्गर फेलो ना. तो आफ्टर दैट व्हाट वुड हैव हैपेंड बेटा? ठीक है ना बेटा? ओके. सो इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स whom बेटा? टुवर्ड्स द. अच्छा बेटा दिस इज दिस लिटिल फेलो धैर्य एंड दिस इज व्हाट बेटा? या हाँ ऋषित बेटा जुड़ी है. ठीक है ना? इन्हें ये कौन है? पारुलकर. क्या नाम है तेरा? पारुल पालसेकर. पालसेकर. बस बस. तो बेटा ये किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा? क्लियर है ना बेटा? हाँ पारुलकर. बस. तो बेटा अभी एक टग ऑफ वॉर हो रहा है. लेकिन बेटा टग ऑफ वॉर में बेटा ये छोटे वाले ने भी रोक छोड़ा है क्या? नहीं. तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ. ट्रांसफर नहीं हुआ. क्या हुआ? शिफ्ट. तो दिस विल डेवलप. अच्छा ये इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड इक्वली और अनइक्वली बोलो. हाँ तो बेटा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. क्लियर है? अच्छा ये अनइक्वली. तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ ज्यादा वक्त बिता रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा बोलो बेटा? पार्शियल नेगेटिव. और इस पे क्या होगा? पार्शियल. दो पोल बन गए कि नहीं बोलो बेटा? तो ये कुछ लिखो मत क्योंकि यहाँ पे मेरे को और कुछ लिखवाना है आप लोगों को बेटा. दो पोल बने कि नहीं बोलो बेटा? तो इसको क्या बोलते हैं बोलो बेटा? पोलार. क्या है? क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? बराबर. एवरीथिंग हैव यू अंडरस्टूड? सपोज बेटा हियर लुक बेटा हियर देयर इज अ टग ऑफ वॉर. सॉरी. सॉरी. इंसान है क्या? क्या होगा? तेरा रहेगा. अरे भाई खुद दिखाई दे रहा. Archie, what happened to you? Black Now imagine. Okay. Us. Chop. Now there is a tug of war between this our Chota Don. Chota Don and Jia. तो अभी बताओ बेटा ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके तरफ शिफ्ट होगा बोलो बेटा? बराबर है ना बेटा? क्लियर है ना? तो ऐसे में तुमको बताना पोलर और नॉन पोलर. आप बोलोगे आपने बॉयज का ही एग्जांपल क्यों दिया, गर्ल्स का क्यों नहीं दिया? एनीवेज बेटा अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना विच वी हैव टू राइट. ए दिस वी हैव टू राइट यार. बस है ध्यान दे बे. देख रहा है क्वेश्चन. प्लीज बेटा लेट अस नॉट वेस्ट टाइम. ए प्लीज बेटा अभी आपको एग्जाम में बाहर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आएगा पोलार के लिए आप क्या याद रखोगे बेटा?
हेड आई वांट यू टू वेट पहला रुक जा 2 मिनट रुक जा हेडफोन कॉल हेडफोन लिसन केयरफुली ए एच और एफ के बीच में क्या बनेगा बोलो बेटा एच एफ एच और ओ के बीच में क्या बनेगा बोलो बेटा एच और एन के बीच में क्या बनेगा एच और कॉल मतलब सी एल तो बेटा ये आपके सिलेबस में यही 4 पोलार है ओनली दिस 4 आर प्लीज टेक डाउन दिस ट्रिक एंड आपने आई होप आपने यहाँ पे ये भी लिखा कि नहीं ओ टू एन टू एग्जाम किधर लिखना है दिख रहा है क्या वहां पे पोलर नॉन पोलर लिखा उधर पे या डन 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 यस सर हो गया एच बस वाह बाहरी बना है जितना बोलो उतना ध्यान दो और काम करो टाइम पास नहीं चाहिए मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आज चलो बेटा हेडफोन का ये समझ में हाँ पोलार तो ये क्या है ये किसके लिए है पोलार के लिए है ये लिखा भी है ना यही एग्जांपल दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे देख एच एफ दिखा कि नहीं HCl दिखा कि नहीं अमोनिया दिखा कि नहीं वाटर दिखा कि नहीं बेटा आपके सिलेबस में 4 ही पोलार है इसके अलावा कोई भी आएगा तो एग्जाम में बेटा मैं 3 एग्जांपल यहाँ से उठा के दूंगा और एक यहाँ से दूंगा मैं बोलूंगा विच इज पोलार समझ में आ गया या तो 3 एग्जांपल यहाँ से उठा के दूंगा और एक यहाँ से दूंगा विच इज नॉन पोलार कर पाओगे बहुत अच्छी बात है चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे बस हो गया सबका प्रॉब्लम सॉल्व चलो बेटा अभी बेटा हमने आपको ना कोवलेंट बॉन्ड के और पोलर और नॉन पोलर के एग्जांपल फटाफट बता देता था बेटा कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था बेटा यहाँ पे देख रहा है बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ठीक है इसमें नॉन पोलर क्यों लिखा है क्या ये हेडफोन कॉल है क्लोरीन में बेटा 7 और 7 तो बेटा हमने पेयर इट इज शेयरिंग वन सिंगल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो ऑक्सीजन में आ जाओ बेटा वो ऑक्सीजन बेटा 6 इलेक्ट्रॉन 2,6 डू यू नो ना बेटा 2,6 how many इलेक्ट्रॉन इट इज शेयरिंग 2 पेयर देयरफॉर व्हाट विल से डबल कोवेलेंट ऐसा मत बोलना 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या बोलोगे डबल कोवेलेंट डबल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या बेटा 1 2 3 4 5 क्योंकि 7 था ना बेटा तो 2,5 दिख रहा है कि नहीं बेटा क्लियर है कि नहीं वो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था तो 2,6 ऐसा ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ तुमको ये तो इतना पता है ना बेटा ये तो लिखा तो है ये लिखा तो है भाई लिखने की क्या जरूरत है देख लिखा है तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा बेटा कितना शेड पेयर है 3 शेड पेयर तो क्या बोलने का ट्रिपल कोवेलेंट अच्छा इसमें लॉन पेयर कितना है ये दोनों लॉन पेयर है कि नहीं हाँ तो ट्रिपल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड टू टू लॉन पेयर लिखो बेटा टू लॉन पेयर टू लॉन पेयर एंड ठीक है एंड समझ में नहीं आता क्या एंड टू लॉन पेयर ठीक है and two lone pairs. What is lone pair? बेटा ये पेयर बॉन्डिंग में गया क्या इल्ले नो नो ठीक है तो टू ए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी बॉन्ड्स तो डोंट से 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यू व्हाट विल से ट्रिपल कोवेलेंट समझ में आया क्या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर चलो एंड टू लॉन पेयर्स तो क्या लिखा नहीं क्या था क्या हैचिंग एग्स और व्हाट ये लिखना है टू लोन पेयर लोन पेयर until and unless they tell you to do so एमसीक्यू में मैंने पूछा तो हाँ ए बेबी छोटा डॉन है जो कहा कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है ठीक है बेटा चलो बेटा 2,6 4 ओके 4 इलेक्ट्रॉन हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मीथेन अच्छा बेटा आपने देखा ये सबके आगे हम लोग क्या ए बेबी लोन पे रिले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ओके ए बेबी
ये सबके आगे क्या लिखा है? नॉन पोलर। नॉन पोलर समझ में आ रहा है ना बेटा? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है बेटा, समझा गया? क्यों रे? नॉन पोलर क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? सर H2 दिमाग खराब मत कर, पहले जो है वो देख। ठीक है? अरे सर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कितना है बेटा? देखो, ये 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर। हेडफोन कॉल वाला ही पोलर होगा, ये सब क्या है? नॉन पोलर। बरोबर है ना बेटा? ये कार्बन, इसमें मैंने बताया था ना, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो चारों अलग अलग है, याद आ रहा है? वो अपन ने वो स्टेप किया था, यहाँ से भी से, यहाँ से भी। ठीक है? ठीक है ना बेटा? हाँ, या बस बस, वेरी गुड। अभी इधर पे आ जाओ बेबी, यहाँ जो बातें नहीं ना बेटा। लुक यार बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप बोलोगे सर आपने इनके आगे पोलर क्यों लिखा है? बिकॉज इसमें हेडफोन कॉल आ रहा है कि नहीं, बोलो बेटा? क्लियर है? ओके, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर भी डिड बेटा। कैन यू सी बेटा? अच्छा, एग्जाम में पूछेगा हाउ मेनी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? 2। हाउ मेनी लोन पेयर? तो देखिए ऐसा पूछेगा बेटा, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। राइट बेटा? चलो, एंड पोल अमोनिया। अमोनिया में बेटा नाइट्रोजन है, सामने इलेक्ट्रॉन बेटा, एटॉमिक नंबर इज 7, सो 2,5। तो देखो मैंने ये आपको ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे बेटा, 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है, इधर दे रहा है, इधर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सिंगल 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 एंड 1 लोन पेयर। एग्जाम में पूछेगा अमोनिया है, सामने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 सिंगल। प्लीज ट्रिपल मत लिखना। और नाइट्रोजन का पूछेगा तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा? 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। क्लियर? ओके, चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? चलो बेटा, अभी आप लोग है ना कुछ यहाँ पे ना नया कुछ आपको बताची में बताची, इधर पे आ जाओ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज नोन एज विच बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। बेटा कोई कोई स्कूल पेपर में ये ऐसा प्रीलिम पेपर में, कहाँ पे स्कूल का अपना नहीं, तुम्हारा स्कूल नहीं, दूसरा स्कूल। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। क्या नाम होता है? डेटिव 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 डेटिव। चलो डन डन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज में पटाटे बेटा, ये है ना बेटा, बेटा एवरी ईयर ये आता है, इसमें या तो ये डायग्राम पूछते हैं या तो ये डायग्राम, ये दोनों में से एक आता ही है। 2 मार्क के लिए फुकट मार्क्स है ये, फुकट। ठीक है? या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, फुकट। ठीक है? हाँ, देखो सखी बेटा, मैं है ना अपने दिमाग में एकदम से, एकदम अपनी वाणी में एकदम धैर्य रख से आपसे बात कर रहा हूं। मैंने अगर अपना धैर्य खो दिया तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? तो एकदम धैर्य से मुझे पढ़ाने दो। ठीक है ना? ओके बेटा, आ जाओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? चलो बस, चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, ए आज हम लोग ने एक चीज देखा बेटा, ए का एक इलेक्ट्रॉन है और बी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, दोनों नॉन मेटल है बेटा। दोनों कौन है? अच्छा, अभी बेटा ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और ये एक पेयर क्या करेंगे बेटा? शेयर करेंगे। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया कि नहीं? ए ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 इलेक्ट्रॉन एंड बी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 इलेक्ट्रॉन, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड वी कॉल इट एज कोवैलेंट, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। बस बस, इधर जाओ, बस। ए, अब बेटा मेरे पास एक ए है, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बी है, बी के पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आ गया। अब बेटा दोनों भी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, देख लो। दोनों भी कौन है? नॉन मेटल है। ए के पास लोन पेयर है और बी आ गया खाली हाथ, नॉन मेटल है दोनों भी। तो जब ये बेटा ए क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, शेयरिंग ही हो रहा है, नॉन मेटल शेयर होगा, तो दोनों शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन किसने दिया? तो बेटा ये वाला, इसमें क्या और इसमें क्या फर्क है? इसमें दोनों जन एक एक लेके आ रहे थे कि नहीं? दोनों जन एक एक, ये छोटा डॉन बाद में समझेगा नहीं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे थे कि नहीं?
यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है शेयरिंग के लिए? सिर्फ ए दे रहा है। तो ऐसा वाला बॉन्ड है, शेयरिंग ही हो रहा है बेटा, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शेयरिंग। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? एरो। ये एरो वाला बॉन्ड का नाम क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट। तो इसको अगर मुझे डिफाइन करने का रहेगा तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? ओके, टाइप ऑफ अ बॉन्ड विच इज फॉर्म इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय द सेम एलिमेंट। क्लियर है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। लेकिन अभी आपको ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आएगा नहीं वंशी का बेटा, यू विल थिंक ना, अरे सर ऐसा कैसा होगा, ऐसा कौन है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है? कौन है? डोंट फोर्स मी टू यूज बायोलॉजी। इस तरफ देख रहे हो, उसको आगे देखने बोल रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे टाइम पास करने का है ना, तो बेटा समझ जाना। क्लियर है ना? कोई आवाज नहीं आएगा। चलो। ए ए बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय हुम बेटा? ओके क्लियर। अच्छा ऐसा कौन है बेटा? हाँ मैं ऐसा बोल रहा था, ऐसा कौन है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है? हाँ वेरी गुड। हाँ मैं आपको बताता हूँ बेटा। अभी ये आप बोलोगे ये बॉन्ड कैसे बनता है, तो देखो बेटा प्लीज गौर से देखो बेटा। ए हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1 1। ए बल्डोटा यहाँ पे देख, क्या सो क्या रहा है? क्लियर है? 1 1। एटॉमिक नंबर इज 1, सो हाउ मेनी प्रोटॉन इट हैज? 1 प्रोटॉन। बराबर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। या हाइड्रोजन एटम है। अगर बेटा मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ये वाले इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया बेटा, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? बोल बेटा क्या बचेगा तेरे पास? अरे बोलने दो इसको, क्या बचेगा? एक प्रोटॉन। बराबर है कि नहीं? अच्छा इसका, लेकिन ये बाहर का ऑर्बिट में सब कुछ गायब हो गया कि नहीं? देखो एक इलेक्ट्रॉन का गायब हो गया, इट इज विद चार्ज 1 प्लस। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? प्रोटॉन हो गया। क्यों प्रोटॉन हो गया? बिकॉज सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन ही बचा ना, हमारा और कुछ नहीं है ना। ये इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। अब इसके बाद एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। अब समझा बेटा, H प्लस को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। ठीक है बेटा? अश्मी बेटा समझा ये कैसे क्या होता है? क्लियर है? राइट ना? आर यू गेटिंग बल्डोड? आर यू गेटिंग इट ना बेटा? ये क्या हो गया? क्या क्या हंस क्या रहे हैं तुम लोग? दिमाग खराब मत करो। समझा ना? मैचिंग मैचिंग कपड़ा रहेगा तो ऐसा किसी को शिकायत नहीं करना। समझा ना? हाँ मेरे लोग क्लियर? कीड़ा बेटा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तू मेरे को आंसर कर। सुन, अमो अमोनिया है ये। क्या है बेटा? अमोनिया। ये अमोनिया है बेटा, सुन लो। अभी बेटा हम लोग ने किया था ना श्लोक, बेटा मेरे को बता यहाँ पे लोन पेयर था कि नहीं? कृषि। दिमाग खराब कर ना, उठा के पटक दूंगा तेरे को। बस कृषि बेटा यहाँ पे देख, अमोनिया है और ये H प्लस आया। अभी तू मेरे को बता ये H प्लस को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बोल? हाँ उसके पास तो वो कुछ भी लेके आया गया यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के लिए, खाली हाथ आ गया। वो क्या आ गया है? खाली हाथ। तो भाई अभी ये दो, ये भी, लेकिन ये दोनों नॉन मेटल है कि नहीं? एन भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है कि नहीं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बाबा रे इसके पास लोन पे अरे रे बाबा, तो ये कौन देगा? ये इसको दे देगा कि नहीं बोलो? लेकिन क्या करेगा? शेयरिंग। क्या करेगा? शेयरिंग। तो देखिए बेटा ये ऐसा 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 था बेटा, ये नॉर्मल वाला। और यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ने दिया। ये मैं इसका कलर चेंज करके बता देता, ये किसको दे दिया? अरे बाबा इसको दे दिया। ये लेकिन तू मेरे को बता कृषि भी इसमें कोई भी चार्ज था क्या ये वाले पे? नहीं ना, इस पे प्लस चार्ज था, तो ये न्यूट्रल पे प्लस आ जाएगा, तो ये पूरे पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं बोल भाई? अच्छा लेकिन बेटा ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन था, आप लोग ने देखा ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका था, इसका था तो एक इसका था, एक इसका था तो एक इसका था, याद आ रहा है कि नहीं? इसे मेरे नॉर्मल बॉन्ड में, लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है रे सांबा? दोनों कौन दे रहा है बोलो? हाँ तो बेटा ये वाला अगर हम लोग जब बनाएंगे, जब क्या करेंगे? बनाएंगे, तो इसके आगे क्या आएगा? और ये अपना एच था डॉट। और पूरे पे क्या चार्ज है बोलो बेटा? क्लियर है? इसका नाम हो गया अमोनियम आयन। आते हैं ना NH3+H, तो इसमें अमोनियम में कौन है बे? कोऑर्डिनेट। क्लियर है? आर यू गेटिंग इट बेटा?
पूरा दिमाग में उतरा क्या? चलो बेटा आ जाओ। तो अभी बेटा इधर पे आ जाओ। सबसे पहले मैंने आपको अभी ये बताया है, सिर्फ जो बताया उसी पे ध्यान दोगे बेटा। ये देखो हेडिंग क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। A type of covalent bond where both shared pair of electrons come with both the electrons coming from same. क्लियर है? ओके, इन डिफिकल्टी क्लियर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोनियम नहीं, पहले मैंने क्या बताया, अमोनियम। देख रहा बेटा, ये नाइट्रोजन का देख, इसका एक था इसका एक था, तो ये बेटा मैंने नॉर्मल सिंगल बॉन्ड बनाया। ये देख इसका एक और इसका एक, तो देख नॉर्मल है, दिख रहा है कि नहीं? इसका एक और इसका एक, तो नॉर्मल है। अरे भाई यहाँ पर बेटा ये देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया यहाँ पर? इसके पास कुछ भी था क्या? नहीं। बच्चे लोग आप एग्जाम में ना ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाना भूल जाते हो, ऊपर ये प्लस चार लिखना भूल जाते हो। और ये वाला बेटा ऐसा है, तो ये कैसा वाला बॉन्ड है? एरो वाला बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? एरो। अब समझ में आया क्या? दिमाग में गया क्या? बोलो। एक रिसीव, ये अमोनियम आयन है। अच्छा अभी ये अमोनिया के अंदर कितना लोन पेयर था? बोल बेटा एक लोन पेयर। इसके अंदर एक भी लोन पेयर है क्या? बोल बेटा। तो यहाँ पे क्या है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, अमोनिया है हाउ लोन पेयर? अमोनिया है हाउ लोन पेयर? वन। अमोनियम है हाउ लोन पेयर? हाँ, तो इसलिए वो लिखा है जीरो लोन पेयर। समझा क्या? वरना कोई मतलब नहीं बनता था। वहां पे एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एग्जामिनर एक बहुत शान है, ऐसा आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा ये अमोनियम का डायग्राम बनाओ। बहुत बार तो डायरेक्ट देता है, लेकिन कभी कभी आपको घुमा के पूछेगा। घुमा के पूछेगा तो कैसे पता है कि आपको ऐसा पूछेगा? ammonia when dissolved in water, ammonia when dissolved in, it produces a cation, it produces a, और दूसरा क्या बनेगा बेटा? अनायन। तो वो लोग क्या बोलेगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कटायन प्रोड्यूस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ। तो कटायन कौन है बे? अमोनियम ही है। तो डायरेक्ट अमोनियम पूछा क्या उसने? नहीं, घुमा फिरा के पूछा। अमोनिया को पानी में डाला तो मेरे को क्या मिलेगा? अमोनियम और ओ एच है। तो उसने क्या बोला, पॉजिटिव वाले का स्ट्रक्चर बनाओ। किसकी? समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का समझ में आ? अमोनियम बेस है ना? Oh, yo, bro. Therefore, it gives OH ions, na, bro. Any is a alkali, it is in fact water soluble. Any base which is water soluble is known as alkali. Clear है? Okay. Any difficulty clear? क्वेश्चन में जो बोल रहा हूँ सुनो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव आयन व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। मतलब आपको अमोनियम बनाना है। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। समझ में आया क्या? क्लियर है? सर या सर अमोनिया दो हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड क्यों नहीं कर सकता? अमोनिया और दो हाइड्रोजन के साथ? हाँ। अरे राजा, इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया तो इसका अभी इस पे एक भी लोन पेयर बचा है क्या? तो लोन पेयर होना चाहिए था ना डोनेट करने के लिए। तो बना पाएगा क्या? हाँ, फिर और भी तेरे को मैं बटाटे रुक जा इधर। ए, अभी बेटा आपको ना एक एग्जामिनर का और एक फेवरेट क्वेश्चन है। इधर आजा बेबी, याना, यहाँ पे देख। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड? आज हम लोग ने अमोनियम बनाया कि नहीं? बोलो बेटा। We made ammonium or not? Tell me, dear. Yes. Okay. Now, if I write chloride, so look, this is a look. You know the formula of ammonium chloride, beta, NH4Cl. Yes. So I'll write here chloride because this is ammonium and this is what, beta? ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब ये आयन है कि नहीं? आयन के बीच में विच बॉन्ड इज देयर? ये सिंगल वाला है, तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं? बोलो। और ये वाला कौन सा है रे? ओहो, हम वहां तो नेम अ कंपाउंड विच हैज ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो आपका आंसर क्या होगा? अमोनियम। ये जरूरी नहीं अमोनियम क्लोराइड, एनी अमोनियम सॉल्ट। अरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी मैं लिख सकता था कि नहीं बेटा? राइट, अमोनियम सल्फेट भी मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो बेटा। एनी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है? या तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा बेटा, अमोनियम क्लोराइड है हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड? तो इसमें सब बॉन्ड नजर आ रहा है, देख कोऑर्डिनेट कोवेलेंट आयन विच बॉन्ड, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? देख बेटा डॉटेड लाइन में। तो आई कैन राइट अमोनियम क्लोराइड और एनी अमोनियम सॉल्ट। एनी अमोनियम सॉल्ट मतलब क्या क्या हो जाएगा? बोलो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट, कोई भी अमोनियम का सॉल्ट ले लेने का। શું થયું બેબી? ક્યાં શું કરે છે દીકરા? અહીંયા છીએ આજુ. હા, તો પછી बीमार हो बेटा? क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या आपको बेटा?
नींद आ रही है। अच्छा ऐसा ही ए ईडी क्या पूछने का इधर दिखता नहीं क्या तेरे को हाँ तो चलो बेटा please beta only reading this will not help as I told you after reading this you have to do what beta MCQ from my booklet go through all the question answers and board question answers because you will once you read those board question answers and the question then you will come to know कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं क्लियर है चलो बेटा डन 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 अभी बेटा इधर पे आ जाते हैं शार्दुल बेटा इकडे बघ okay now this is what your beta water today we did water na beta it was having two single covalent bond and two lone pairs right now if I take water and again I will take again what beta proton H plus right now so this fellow is having no electron right? It requires how many electron two all of you please pay attention here it requires how many electrons two clear so now water has two lone pair so it can give this one lone pair to this fellow for sharing or not tell me Yes. okay सो हियर बेटा कैन यू सी दिस एंड दिस वन एक दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये नॉर्मल बॉन्ड ये भी नॉर्मल बॉन्ड लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए कौन दे रहा है ऑक्सीजन तो ये वाला कौन सा बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छा बेटा लेकिन ये वाला पैर देखिए ये वाला पैर बॉन्डिंग में जा रहा है क्या तो ये क्या है लोन पैर क्या है अच्छा वाटर प्लस एच वाटर पे कोई चार्ज नहीं था लेकिन एच पे प्लस चार्ज था तो देख ओवरऑल इस पे आप एग्जाम में बच्चे लोग ये बनाना भूल जाते हैं क्लियर है राइट अच्छा अभी एग्जाम में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा सुन ले अच्छी तरह से रेयार्थ वाटर मॉलिक्यूल है हमने लोन पेयर वाटर ओनली वाटर हाँ एंड हाइड्रोनियम आयन है हमने लोन पेयर हाइड्रोनियम देख बेटा हाइड्रोनियम में कितना है बोलो बेटा वन लोन पेयर ठीक है ना बेटा एक मिनट कौन है हेलो हेलो हाँ वेरी रुक जा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वो ये भी वही पूछ रहा था उसको अभी तूने भी पूछा अभी वो भी मैं आंसर बताता हूँ ए छोटा डॉन नहीं अपनी एक कौन है भाई हनी सिंह हनी सिंह हाँ हनी सिंह यहाँ पे देख आप सब लोग देखो हाँ सब लोग देखो बेटा अभी आप सबको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर इसके पास एक लोन पेयर था तो इसने एक एरो वाला ऐसा बॉन्ड बनाया दिख रहा है कि नहीं ये दिख रहा है अच्छा विलिंग वाटर के बाद भाई दो दो लोन पेयर है तो आपने बोला सर इसने एक ने बना दिया बरोबर है कि नहीं अभी हनी सिंह तू भी बोले अरे सर और एक लोन पेयर है ये इसको भी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए कि नहीं हाँ तो ये बनाने के लिए उसके बाजू में और कौन आना चाहिए था बेटा जैसा इसके लिए एक एच प्लस आया कि नहीं तो इसके लिए भी मुझे क्या लाना पड़ेगा एक एच प्लस लाना पड़ेगा कि नहीं बरोबर है कि नहीं बोलो ना हाँ तो बस एच प्लस को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बस ये भी इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए ना बेटा देखना ऐसा एरो वाला बॉन्ड बना पाएगा कि नहीं बोलना है लोन पेयर है ना लेकिन वो नहीं बनाएगा वो क्या है क्यों नहीं बनाएगा उसका मैं रीजन बताता हूँ तेरा भी जो क्वेश्चन था ना वो मैं बताता ए सुन लो अच्छा पहले ये सिर्फ पानी था पानी पे कोई चार्ज था क्या अभी एच प्लस इस पे आ गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया बोलो बेटा अच्छा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया अब बेटा मैं और एक एच प्लस ये लोन पेयर को देने के लिए और एक मुझे एच प्लस लाना पड़ेगा कि नहीं इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज और ये एच प्लस पे भी पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव है रिपेल समझ में आया ना रिपेल रिपेल फिर है पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल समझ में आ गया ना हाँ दिमाग में समझ गया कि नहीं अभी तुमको समझा क्या कि वो वापस क्यों नहीं आ सकता तो देखना पड़ता है तो इसमें क्यों आया था इसके बाजू में भी जिसपे कोई चार्ज नहीं था वैसे तूने भी ये भी वही क्वेश्चन पूछा लेकिन उसने थोड़ा इलॉजिकली पूछा था अमोनियम उसने क्या बोला अमोनियम ने एक ही एरो बनाया था और एक हाइड्रोनियम आ सकता है लेकिन इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है लेकिन इसके बाजू में मैं अगर और एक एच प्लस लाता तो बेटा ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता बोल बेटा रिपेल तो आप आएगा क्या कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर है हाँ हाँ तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ और दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं 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 बेटा वो दो हाइड्रोजन अगर तो नहीं अगर तू दो ले लेगा तो बेटा देख यहाँ पे भी एक आ जाएगा यहाँ पे भी एक आएगा बराबर है कि नहीं तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 10 हो गए ऑक्टेट होना चाहिए क्या होना चाहिए अभी ऑक्टेट है क्या समझा क्या यहाँ पे देख सब में ऑक्टेट है इधर देख रहा है ऑक्टेट है क्लियर है ओके चलो बेटा एनीवेज बट लेट मी टेल यू बेटा ऑक्टेट रूल है ना फेल होता है हम लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ा था 11 12 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी स्टेबल होता है एक्सपांडेड ऑक्टेट भी स्टेबल होता है
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी आपको जानने की जरूरत, ये समझ में आ गया हाइड्रोनियम। लेकिन ये सुन रही सखी, सुन रही सखी, एक क्वेश्चन आता है, सुन रही सखी, ओए, एग्जामिनर है ना, शाना है वो क्या बोलता है कि मैं डायरेक्ट हाइड्रोनियम आयन नहीं पूछूंगा ड्रॉ करने का, क्या डायरेक्ट। तभी आप मेरे को बता बेटा, एग्जामिनर क्या बोलेगा, व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो बेटा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो HCl को मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो कौन सा आयन बनेगा बताओ मेरे को। एसिड H+ दे देता है ना, तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम, NCl-। तो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा बेटा, लुक व्हेन यू डिसॉल्व HCl बेटा, लुक H, इट विल फॉर्म व्हाट, हाइड्रोनियम एंड क्लोराइड, नॉट विजिबल डियर, शैल आई राइट लिटिल बिट, हो गया, ओके, हाइड्रोनियम, draw the structure of positive ion form when acid dissolves in water। तो आप क्या लिखोगे बेटा, मतलब वो एग्जामिनर क्या कहना चाहता है, यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है, बोलिए। कवि कहना चाहता है कि आप हाइड्रोनियम का स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बस हम लोग को मार्क्स देना प्लीज बेटा यहाँ पे लिखो, ये मैं जो बोलता हूँ ना बेटा वो लिखो। मतलब एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछेगा, व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर, वो तो नीचे वाले का तो मैंने बताया था ना, व्हेन अमोनिया, अमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो आप क्वेश्चन लिखो, ये मत लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कटायन और द पॉजिटिव आयन फॉर्म, पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर बोलेगे तो आपको किसका बनाने का है, अमोनियम का। व्हेन एसिड इज डिसॉल्व बेटा तर कोणाचा बेटा, हाइड्रोनियम, ठीक है ना, क्लियर है? रिवर्सेबल है। हाँ रिवर्सिबल होता है वो रिएक्शन नहीं पूछेगी ये, ठीक है ना, वो रिएक्शन में आपको एसिड बेस पे पढ़ाने वाला हूँ सब, एसिड बेस पे मैं सब पढ़ाने वाला हूँ, समझा क्या, क्लियर है? यो ब्रो, और नहीं आया रे आज बेटा, यहाँ पे कोई गायब दिख रहा है। चलो बेटा, हेलो हेलो, चलो बेटा आगे बढ़े, ओके बेबी, चिल ब्रो, बस बस, प्लीज प्लीज, अभी आपको समझा बेटा अलग अलग टाइप के प्रश्न कैसे आएंगे। ओके बेटा, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताते, आ जाओ इधर, एंड पोलर नॉन पोलर हो गया, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी बता दिया। ये वाला, हाँ एक रह गया था बेटा, ए भाई ये बहुत रेयरली पूछते हैं, हाइड्रोक्सिल, ए ये मेरे पास क्या था बोलो बेटा, पानी पानी पानी, बराबर है, पानी पानी, ठीक है, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन था, अगर बिना इसमें से मैंने सिर्फ हाइड्रोजन को निकाला, किसको निकाला सिर्फ, तो अपने पास क्या बचेगा बेटा, OH- बनेगा कि नहीं बोलो बेटा, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल, क्या कहते हैं, या हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। अगर पूछा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रोक्सिल, तो बेटा ये क्या था, अपना पानी था, दिख रहा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, अरे बोलना पानी और दो लोन पैर, हनी सिंह यहाँ पे देखो क्या करने वाला, मैं यहाँ से क्या गायब करने वाला हूँ, देख बेटा यहाँ पे सिर्फ H जाएगा, ओनली H, उसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो क्या गया इसमें से, H+ गया, क्या गया, तो बेटा इसमें से पॉजिटिव H गया, तो इसमें ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये एक इलेक्ट्रॉन किसका था रे, H का। अच्छा अभी ये देख, ये तो शेयर है ना, ये बॉन्ड रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई बॉन्ड है क्या, नहीं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सिल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, और कैसे निकाल दिया? कैसे निकाल दिया मतलब, ये ऐसे ही निकलता है क्या, झिंगुर, सर ऐसे ही निकल झिंगुर, ए बाय द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। उसका मैं किसी के साथ रिएक्शन करेगा, समझ में ऐसा कैसा होगा, ये जब मैंने क्या ले लिया, ये पानी ले लिया है, तो अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, अमोनियम, तो ये H+ इसने ले लिया, और तेरे पास ये बचा क्या, OH-, समझा क्या, क्लियर है, ओके। सर ये तो सेम क्या NH4 अबे ये हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट आया, उसमें वो NH4 वाला था, ये रे,
ओ ओ। बस करो बेटा, फोन में कितना देखोगे, कितना देखोगे, सो रहे हो। अरे यार ऐसा मेरे को लगता है कि मतलब मेरा तबीयत खराब हो गया कि तो इतना शांत बैठी आज, मतलब ऐसा सब माहौल ठीक ठाक है ना सब जगह पर आज, इतना शांत बैठ सकती है कभी। ए भाई, बस इकडे बघा, ठीक है बेटा, मेरे को खाली बताओ, अपार्ट फ्रॉम अद्वैत ऑल ऑफ यू गॉट दैट बोर्ड बुकलेट विच आई गिव यू लास्ट क्लास, पक्का ना, सबको मिला है? हाँ, कौन सा बोल? अरे माय नोट्स। बस बस ये वो बुक निकालना नहीं है अभी, मैंने आपको बोला है क्या बुक निकालने के लिए, बस बातें नहीं है अभी, बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छा, अभी बेटा ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, ये मैंने आपको लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, लेकिन इसका ट्रिक आपको क्या याद रखना है, लियो, क्या याद रखने का है, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, फिर लियो जर्मनी, जर्मनी, अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लियो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है बे झिंगुर, फिर पीछे ना, अच्छी बात है, वो मैंने 9th में पढ़ाया था। लेकिन बेटा सबसे प्रॉब्लम क्या होता है बच्चा, ना व्हेन वी राइट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अगर मैंने लेफ्ट में प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा या माइनस इलेक्ट्रॉन लिखा या राइट में लिखा, तो बच्चा है ना वो कंफ्यूज हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन में। तो सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है ऑक्सीडेशन के लिए, ये आपको याद रखना है सिर्फ, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा बेटा, इंक्रीज इन चार्ज, बस, एंड रिडक्शन विल बी व्हाट, डिक्रीज इन चार्ज, ये लिख लो। आप बोलोगे सर आप ये क्यों लिखवा रहे हो, मैं बताता हूँ रीजन, पूरा बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन इज व्हाट, ये लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझा क्या, रिडक्शन इज व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोल बे। अरे नॉट पोलर कोवेलेंट, एक इलेक्ट्रॉन एक उसको पार्शियल पॉजिटिव मिलता है तो डज इट गेट ऑक्सीडाइज्ड? नो नॉट एट ऑल, ऑक्सीडाइज होने के लिए देयर शुड बी कंप्लीट लॉस ऑफ, लॉस और गेन, समझ में आता है, लॉस ऑफ गेन, लॉस और गेन, share it is share अबे ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपके आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, बस अब यहाँ पे सुनने का, ओए वोट ऑफ यू यहाँ पर, समझा ना, ध्यान दे इधर पे। ओए, चलो बेटा ये हो गया, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बता, हाँ नहीं होगा। अभी बेटा सुन लो, पहला सुनने बेटा, ए आप देखोगे बेटा ये पेज 2 पे इतनी जगह है पीछे, ओके, वो हाँ हाँ गाँव बच सकता है, लेकिन हमको शहर, दिस ए दिस विस्की एंड दिस टकनास बोथ ऑफ दिस, समझा ना, कब से बात मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, तो वो क्या कर रहे हैं तुम लोग, मैं देखता नहीं क्या तुम ओके बेटा दिस पेज, ए बेबी અહીંયા जो ये डूबा यहाँ जो ये पेज है बेटा, इसको आप है ना 2 पार्ट में डिवाइड करना, क्योंकि आपको इसके ऊपर यहाँ पे अभी कुछ लिखना है और इसके बाद वाला उसने जगह में आ जाएगा, तो पहले मुझे पढ़ाने दो बाद में लिखना, ठीक है, प्लीज बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए बेबी बस
बेटा ये देखो, डेंजरस इट वाज, फायरिंग नहीं, पहला सुनना है, पहले सुनना है। Stop talking. कुछ बनाना नहीं है, पहले देखना है। ए बेबी, बेबीज एंड बाबाज प्लीज यहाँ पे देखो अच्छे से। ए अगर मैं नंबर लाइन में ऐसे जाऊंगा, यहाँ से आप देख रहे चार्ज बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। कोई भी रिएक्शन और प्रोडक्ट साइड में देखने का, अगर अपना चार्ज बढ़ रहा है रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट, देन इट इज विच व्हाट बेटा? ऑक्सी। नाउ बेटा इफ यू गो टुवर्ड दिस साइड, यहां से आप देख रहे हो क्या बेटा? पॉजिटिव। इफ इन माय रिएक्शन इफ आई गो इन दिस डायरेक्शन, सो फ्रॉम +3 इज बिगर और +2 +3, so it will be what beta? Reduction. It will be what? अभी सुनो बेटा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, सुन लो, कंफ्यूज होने का नहीं। अच्छा बेटा, अगर सपोज बेटा मैंने एग्जाम में ऐसा लिखा, लिखने तो दे। ठीक बेटा, ये वाला बहुत आसान हो जाएगा कि नहीं? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो आपको समझ में आएगा ना डायरेक्टली क्या है, बोलो बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सी का मतलब समझेगा क्या? क्यू और यहाँ पे 1+, बराबर है कि नहीं? लेकिन कभी कभी ना बच्चे ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, Fe2+, क्या लिखा है? Fe2+ एंड इट इज बिकमिंग Fe3+, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया पता है क्या? प्लस इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन दिखा तो उनके दिमाग में क्या चलता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बेटा प्लस इलेक्ट्रॉन देखते तो लोग के दिमाग में क्या चलता है? गेन। बट बेटा ये भी तुम्हारा कौन सा रिएक्शन है, बोलो बेटा? ऑक्सीडेशन ही है। हम लोग को है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन को मत देखो तुम डायरेक्टली, कहाँ पे देखने का? रिएक्टेंट का चार्ज। यहाँ पे सोडियम था, सोडियम अकेला था तो चार्ज कितना था? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पे क्या बोलो बेटा? 1+। ए येड़े, मैं तेरे को जो बोल रहा हूँ ये देख बे इधर, स्टेलो यहाँ पे बस बातें बहुत कर रहा है बेटा तू। और है ना बेटा, स्टूल पे बैठा कर, दिखता नहीं है तो यहाँ पे। ठीक है। अरे बेटा हम लोग ने वो रखा है, वो पता है नहीं, वो सैलून में जाता है छोटे बच्चों को वो करता रहता है। हाँ बस वही रखा है मैंने बात। ओके, बोल रहा हूँ ध्यान दे, तो टाइम पास करता है। बेटा ये बेबी, लुक बेटा, दिस अगेन आई एम टेलिंग यू विल गो रॉन्ग। देखो ये 0 से +1 बना, आप है ना रिएक्टेंट का ये देखने का और प्रोडक्ट देखने का बेटा, ठीक है ना बेटा? क्लियर है? ओके अभी देखो इसमें आप बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल ही दो गेम में से। क्या याद रखने का? यार व्हाट इज द चार्ज बेबी? 2+। हियर व्हाट इज द चार्ज? तो ना बता मेरा, चार्ज बढ़ रहा है, देयरफॉर इट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अच्छा दूसरा बेटा, रिडक्शन के लिए हम लोग अभी करने वाले, देखो बेटा मैंने Cl लिखा है, Cl-1 इलेक्ट्रॉन, इट बिकम प्लस इलेक्ट्रॉन, इट बिकम व्हाट? Cl1-। अब ये आपको इलेक्ट्रॉन के डेफिनेशन से समझेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज व्हाट बेटा? रिडक्शन। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, अगर मैंने ऐसा लिखा है Fe3+, ओके, Fe3+ gives you, अरे मैंने Fe3+ दिया ना बेटा, Fe3+ gives you Fe2+ माइनस इलेक्ट्रॉन। यस, तो अभी आपको क्या लिखता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? लेकिन यहाँ पे नहीं देखने का रहता है वो कभी। समझ में आ गया ना? तो ये एक्चुअली प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ पे जाके वो क्या हुआ? माइनस। तो ये भी क्या है बोलो बेटा? तो बेस्ट ट्रिक क्या है आपको क्या देखने का? यहाँ पे देख, चार्ज 0 था, यहाँ पे कितना हो गया? तो 0 बढ़ाया, -2 -1 माइनस, तो आई एम गोइंग इन विच डायरेक्शन? तो इट इज रिडक्शन। यहाँ पे देखो +3 है, यहाँ पे क्या है?
तो देखो यहाँ पे +3 और +2, तो आई एम गोइंग इन विद डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इतना पार्ट वहां पे मैंने बोला 2 पार्ट में डिवाइड करना, पहला इतना पार्ट वहां पे करो कॉपी। अरे बेटा ये यहाँ पे पीछे जगह है, इतने में कॉपी करो ये। I hope all of you have understood this concept. Yeah. बताता हूँ ना बेटा, पहले अरे मेरे पास स्केल ही नहीं इसके बाद नो 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 यू सर ये लिखना है पीछे जगह है ना वहां पे, बोला था ना, लिख लो फटाफट। ये डायग्राम भी बनाना है ये, ठीक है, डायग्राम भी। लेफ्टी है इसको शार्दुल। What? Your weight compresses the time. That's not how dance video. And then the volume. विस्की एंड चकना, वही चकना। बस बस। ए व्हाट oh man, what man, English की दुकान man यहाँ पे, just shut your mouth man। What man, I will roll it, you don't know, I'll just make a roll right now only, ठीक है ना बेटा, because before taking you have to roll it, you see। अब मालूम है तुम लोग वो सब गाना देखते हो ना, कैरी मिनाटी का, सब मेरे को मालूम है। हाँ, वो सब बेटा इन्फ्लुएंसर सब वाहियात रहते, उनको बिलीव नहीं करने का, वो सब ऐसा अपना सब सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वाहियात बातें करते रहते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं, चरस लोग सरस ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वही गाना, उसी की बात कर रहा हूँ। बस, हाँ कर दो ना बेटा, थोड़ा मेरे को भी हवा आएगी। ऐसा होगा होगा गुजारे, थोड़ा होता है ऐसा, पुश करना थोड़ा। बस हो गया ना, बस बस बस, इधर बातें नहीं, बस जो हो गया बेटा। आई हैव ऑल ऑफ योर, मैं थोड़ी देर में करता हूँ बेटा, थोड़ा सा हवा है ना यहाँ पे, थोड़ा। हाँ है ना, हाँ, और डोंट वरी, आप कर देंगे बेटा फरमाइश। अथर्व चौहान नहीं हुआ, अथर्व चकना है, हाँ, विल गो नाइसली विद विस्की चकना। ओके, हाँ बस तो, अच्छा ये हो गया सबका कॉपी। ए बेटा, ए ऑल ऑफ यू ना, बस बस हाँ। अच्छा अभी है ना बेटा, मैंने आपको बोला था उसके नीचे, बेबी एक मिनट, आपको मैंने आपको बोला था ना इसके नीचे जगह है, अब वहां पे कुछ लिखना और ये आता है बोर्ड में, सुनो सुनो, टुबिडू टुबिडू टू, ये देख, एग्जाम में आता है राइट इक्वेशन, राइट ionic equation for formation of, ऐसे में बता रहा, पहले मुझे लिखने तो दो, ऑफ NaCl बेटा, मतलब दे कैन गिव यू एनी कंपाउंड, ओके,
अच्छा हाँ, पहले मैं बता रहा हूँ, पहले सुनेगी क्या, पहले सुनेगी आयनिक इक्वेशन क्या होता है। हाँ बस। हाँ 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 हाँ, हाउ टू राइट। देख बेटा, NaCl है तो अपने को पहले आयनिक इक्वेशन का मतलब क्या आता है, वी हैव टू राइट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आयंस, वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ sodium atomic number is how much beta, 281. So during bond formation it will lose one electron, and what it will give you beta, Na1 plus. अच्छा ठीक है, और ये कौन सा रिएक्शन है बोलो बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लोरीन क्या है बेटा, 17, so it will what beta, 287, so it will gain one electron or not, tell me. You get Cl1 minus and this will be what beta, 288, and this is which reaction बोलो बेटा, रिडक्शन। ये आयनिक रिएक्शन हो गए बेटा, क्या हो गए बोलो बेटा, आयोनिक रिएक्शन बेटा। फिर बाद में Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे के सामने आएंगे और क्या बन जाएगा बोलो बेटा, Na। अच्छा लेकिन एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो कभी आपको डायरेक्ट Na ऐसा देगा नहीं, दे भी देते बहुत बार। लिसन, ओके, तो वो क्या बोलेगा पता है क्या, देयर इज एन एलिमेंट X बेबी, लिसन, देयर इज एन एलिमेंट X whose atomic number is 11, there is an atomic number element Y whose atomic number is 17, write their ionic reaction। तो फिर वाई के हाँ लेकिन अभी आप बेटा XY रहेगा तो आप मेटल मत बनाना उसको, आप ये Na की जगह पे मतलब ये X हो जाता, समझ में आ रहा है क्या। अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर एग्जाम में, बोलेंगे सर ऐसा तो हमने देखा नहीं था, इसलिए बता रहा हूँ, सब देख लो, क्लियर है। चलो ये कॉपी करो बेटा, तो एग्जाम में वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेंशन करना है। करना है। अच्छा तेरे को हे कॉपी करायचं होतं डिअर, हे घे ना, घे रे, हे घे रे, काय होत नाही, घे रे, औषध आहे घे। चलो चैनिक, सरनेम क्या है, ओ दादर, दादर। I'll consider your proposal. I'll put this in parliament and we'll take the support of all the member of parliament and we'll conduct a voting on it and then we'll do it. Okay? Yeah, we follow democracy. Okay, don't worry. Okay, bus. ओके बस क्लियर है ना। ओके चलो बेटा आगे बढ़े बेटा, ये समझ में आया आपको, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे समझाना बेटा। राइट आयनिक रिएक्शन, सपोज बेटा अगर मैंने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का बोला रहता, किसका पूछा रहता बोलो बेटा, हाँ तो अभी वो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको। अच्छा दे विल समटाइम्स दे विल गिव यू एलिमेंट बट समटाइम्स दे विल गिव यू अल्फाबेट PQ XY MN ऐसा। सपोज यही रिएक्शन अगर मैंने कैल्शियम के लिए पूछा रहता तो क्या करती बोल बेबी। हाँ हाँ वो समझ गया, बोले आप समझ गए ना बेटा, खाली क्या करते हैं, ओए ये सबका हो गया कॉपी करके, फिर पहले ये कर लो फिर मैं आगे बढ़ता। तो यहाँ पे कैल्शियम होता है और वहां पे क्या, आप कैल्शियम लिखते हैं, कैल्शियम लूजेस टू ए बेबी, मराठे, हाँ कैल्शियम -2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन 2 गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम 2+ बनता है O2-, फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आते और क्या बन जाता पहला बेटा, वो क्या है, हाँ वो क्या है। सर ये चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव कॉपीड। हेलो हेलो हेलो, डन 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 डन। सपोज बेटा अगर यही क्वेश्चन मैंने आपको किसके लिए पूछा रहता, आलू ले लो, कांदा ले, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, नो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव यू, तो अभी आयनिक इक्वेशन अगर फिर फाइनली O2 + O2- विल गिव यू व्हाट, ये Al2O3, तो अभी बैलेंस भी करना पड़ेगा कि नहीं इधर पे, इसके आगे में क्या लिखिएगा 2, इसके आगे में क्या लिखिएगा 3,
बराबर है कि नहीं? दिस आर द आयनिक, दिस इज अंडरगोइंग व्हाट बेटा? ऑक्सीडेशन, दिस इज अंडरगोइंग व्हाट? रिडक्शन। क्लियर है? ओके। मतलब ऐसे आयनिक इक्वेशन भी आ सकते हैं। समझ में आता है तुमको हम क्या बात करता है? बेटा फोन बोन में देख रही है, मेरे को सब पता चलता है, समझा ना? प्लीज, मेरी नजर निर्मा सुपर, याद रखना, सब पता चलता है। क्लियर है ना? ओके, चलो। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बस। बेटा प्लीज ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो बेटा। एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं इसलिए पढ़ाते टाइम पे अलग अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ। अदरवाइज ये बेटा ये खत्म करने का ना, मैं भी हाफ एन आवर पूरा खत्म कर देता सब, एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा तुमको। ठीक है, आगे बढ़े क्या? अरे ये क्यों कॉपी कर रही है, इसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा ले लिया तो ले लिया, ले 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 भाई, ऐसा कर रहे हो तो ये ले 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 283 था बेटा। वो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था? ये 2.6। गेन, प्लीज बेटा ऐसा मस्ती करना है। When there is important thing going on, you have to pay attention. ठीक है बेटा? Understand. I understand. I understand. वो आती है ना ऐसा, बड़े बड़े नाखून लेके ऐसे। हाँ वो है। हाँ ठीक है बेटा, चलो बेटा आजा बेटा, आए बस, बस बस। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अभी ना। तो लुक बेटा, आई हैव कवर्ड ऑल दिस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिर मैंने तुमको बता दिया। अभी ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने आ रहा है, देवियों सज्जनों देखो अच्छे से। अच्छा, अभी हम लोग ने बेटा सबसे पहला डिस्टिंग्विश में पहला पूछता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का एक एग्जांपल मैं आपको देता बेटा, ऐसे देखो NaCl। तो NaCl में बेटा विच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर? आयन। आयन। तो पूछते व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? आयन। क्या है? आयन। अच्छा, आपका एग्जांपल में ऐसा भी बोलूंगा, कैल्शियम क्लोराइड कंटेन्स विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो आप क्या बोलोगे? आयन। क्या बोलोगे? आयन। अच्छा बेटा, अभी मैंने यहाँ पे कोलन, कोलन में आज हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल मान लिए, O2, N2, H2, N2, अमोनिया। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है बे? मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है ना, सब एक का मॉलिक्यूल है कि नहीं, बोलो बेटा? तो प्रोबेबली नहीं, दे आर, प्रोबेबली नहीं, दे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। ये बहुत बार बेटा MCQ में आता है। अगर मैंने एग्जाम में ऐसा पूछा, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड कंटेन विच पार्टिकल्स, तो व्हाट विल से? आयंस। If I say covalent compound contains which particles, सखी? covalent compound contains which particles? Molecules. अच्छा, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ आपको बेटा, ये ऑक्सीजन कंटेन विच पार्टिकल, तो आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? ओके, कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन्स व्हाट? मेटल और नॉन मेटल है तो आयंस, समझा ना? कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक बॉन्ड है ना। अच्छा, अब बेटा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हे, पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज में बताते। ठीक है, प्लीज प्लीज। ये आप लोगों ने नमक को देखा है बेटा? नमक, जनरली नमक हम लोग खाते हैं दिन में रोज। तो नमक कौन से फॉर्म में होता है बेटा? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? एक इंपॉर्टेंट गिव रीजन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट गिव रीजन, लिसन केयरफुली। ए, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड आर व्हाट बेटा? हार्ड क्रिस्टल सॉलिड। बाय बाय दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या बोलने का? आयनिक बिकॉज आयनिक कंपाउंड में व्हाट? आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? ये रीजन, ये देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ। क्लियर है? अच्छा बेटा, आप लोग ने कोवलेंट कंपाउंड को देखा? ए मराठे इकडे बघ, H2N2O2, ये सब कौन है बोलो बेटा? गैस है कि नहीं? पानी 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 लिक्विड है कि नहीं, बोल बेटा?
ब्रोमीन भी पता है रेडिश ब्राउन लिक्विड होता था, Yes, sir. और आयोडीन तुम्हारा क्या होता था, सॉलिड। क्या होता था, सॉलिड। ये ब्रोमीन क्या होता था, लिक्विड। अच्छा ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड है कि नहीं, बोल बेटा। और ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड है। अच्छा जनरली कोवेलेंट कंपाउंड, मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड कौन से फॉर्म में होते हैं, गैसेस या तो लिक्विड। अगर सॉलिड में भी होता है तो आयोडीन बहुत सॉफ्ट सॉलिड होता है बेटा, तो टूट सकते हैं फटाक से। सो दे आर व्हाट बेटा, सॉफ्ट सॉलिड। व्हाई, व्हाई, व्हाई। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है बोलो बेटा, दिया है व्हाट, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द। चलो बेटा अभी ना मेरे को बताओ बेटा, यहाँ पे सुन, दिस बॉय यार, तेवटिया। हाँ, नेवतिया टेवटिया मत। हाँ So, Tewatia तो clear है। हाँ, अच्छा। अरे वंश बेटा अभी मेरे को बताओ, व्हाट इज वैंडरवाल फोर्सेस। तो कुछ तो होगा सर, ये तुम्हें था। दिस बॉय यार, व्हाट इज वैंडरवाल फोर्सेस। That the force between the two molecules to attract करते हैं. Okay, very good बेटा, wrong total, मतलब yeah, and the term is right, but how it is developed, what is exactly van der Waals forces, anyone, छापरवाल बोल दो, स्लाइडिंग, सर ये बेटा कॉन्सेप्ट है सर, ये कार्बन अच्छा। अबे बेटा इसके लिए मैं तुमको बता रहा हूँ ना भी, देखो वो कैसे जनरेट होता है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, सुनो। इसलिए बेटा मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, आई कुड, मैंने क्या बोला, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बताएगा तुमको। चलो बेटा इधर पे आ जा। सपोज बेटा ये कोई भी एक मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है, कौन है बेटा, मॉलिक्यूल। अब बेटा यहाँ पे कौन घूम रहा है बोलो, इसमें इलेक्ट्रॉन। क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है या घूमियो घूमियो होता है, घूमियो घूमियो। ओके। अभी एक ऐसा वक्त होगा, एक ऐसा वक्त आएगा जब क्या हो जाएगा, सुनने का अच्छे से, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं कि इलेक्ट्रॉन घूम घूम के एक जगह पर आएगा कि नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऐसा। हाँ, हाँ। यहाँ पे भी घूम घूम के एक जगह पे आ जाएगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अच्छा बेटा जब ये इस तरफ आ जाएगा, गौर से देखो, गौर गौर से देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा गोल गोल घूम रहा है बेटा, क्लियर है। तो इधर पे आ जाए, तो अभी यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, और यहाँ पे कौन आ गया, पूरा न्यूक्लियस आ गया, तो इसको क्या हो जाएगा, पार्शियल। ये यहाँ पर भी बेटा क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ओ ये नेगेटिव है और ये कौन है, तो इनके बीच में फोर्स डेवलप होगा, और ये फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस। क्लियर है, ओके। और ये बेटा काफी दूर, इसमें ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग हो रहा है क्या, नहीं ना, शेयरिंग वेयरिंग में काफी दूर दूर है, तो इसलिए क्या होता है, ये कमजोर होता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे, किस पे डिपेंड करेगा, मतलब साइज पे डिपेंड करेगा, क्यों बे, अरे ये देखो, अगर दो छोटे छोटे एटम होते तो छोटा छोटा एरिया कांटेक्ट में आता कि नहीं, बोलो। अगर बड़ा साइज हो गया तो ये देखिए ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं, बोलो ना, क्लियर है कि नहीं। ओके, ये अच्छा बहुत मस्त है, देखो ये कौन सा, बेटा सुन, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। अभी मेरे को एक चीज बताओ, क्या अभी अभी आप लोग ने बोला, लिसन, यहाँ पे देख, अभी मैंने कभी बोल रहा हूँ, सुनो। कभी आपने सोचा है, हम लोग ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, क्लोरीन क्या होता है, गैस, आपको पता है कि नहीं। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड। आयोडीन क्या होता है, सॉलिड। क्या होता है, इसका रीजन पता है, नहीं. अभी अभी अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब थोड़ा दिमाग, ये दोनों ये सारे कोवलेंट है, कोवलेंट में कौन सा फोर्स होता है, बता रहा हूँ ना बेटा। हाँ वेरी गुड। देख बेटा ये इसलिए इसलिए मैं तुमको बता, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, भले ये है लेकिन तुमको अभी समझेगा। देख क्लोरीन, मैंने था वैन डर वाल फोर्स डिपेंड अपॉन साइज ना बेटा, राइट। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या रहेगा, क्लोरीन तुम्हारा छोटा है, अरे देखना बाहर, क्लोरीन, ये तुम्हारा क्लोरीन है, ये तुम्हारा ब्रोमीन है, आयोडीन तो हिडिंबा है ना बेटा, इतना बड़ा। अच्छा अभी बेटा सुनो, ए क्लोरीन में बेटा सरफेस अट्रैक्शन कम है, क्लोरीन में देख, ए सॉरी,
क्लोरीन में कम है, हाँ। फिर ब्रोमीन में और ज्यादा है कि नहीं। तो बेटा जितना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, तो उतना वो नजदीक आएगा, नजदीक आएगा। देख, गैस में एटम्स आर फार, लिक्विड में क्लोज, सॉलिड में और क्लोज। अभी समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। ये क्लोरीन, अरे दीज आर, किधर गया? दीज आर टू क्लोरीन बेटा, तो पॉइंट ऑफ वी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे दो दो ब्रोमीन, ओ भाई गॉड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, देयरफॉर इट कम्स क्लोजर, देयरफॉर इट गोज इनटू लिक्विड। एंड आयोडीन का साइज और भी बड़ा है ना बेटा, तो देखना यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ज्यादा होगा, तो मोर, तो देयरफॉर इट इज इन सॉलिड। क्लियर है? बोल बे। चलो बेटा अभी इधर आ जाओ। तो ये देखिए, पढ़ाने के लिए इतना सब डिटेल में तुमको बताते में, अभी आ जाओ इधर पे फटाफट। गैसेज आर लिक्विड्स फॉर व्हाई? बिकॉज वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। तो फिर ग्राफाइट का वर्टिकल वैन डर वाल्स वीक क्यों है? कौन सा? ग्राफाइट में वर्टिकल फोर्सेस अबे बेटा वीक वो खाली किसके लिए हम लोग करते थे पता है क्या? व्हेन वी कंपेयर इट टू डायमंड। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, और उसमें ग्रेफाइट का तुम्हारा ने बोला बेटा, तो वहां पे सरफेस एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज वाई। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता तो फिर फोर्स ऑफ, हॉरिजॉन्टल वीक नहीं है, बस वो हाँ वो वर्टिकली वीक है। अरे उसका अरेंजमेंट है बेटा, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है, ओवरऑल मॉलिक्यूल का होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अभी बेटा ये, अभी सुनो, ये हम लोग ने अभी यहाँ पे लिखा बेटा, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बोलो बेटा। चलो ये, हाँ बोल पे जिया, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? कुछ पता है? नहीं वेंडरवॉल नहीं, नॉन वोलेटाइल। हाँ, बेंडेबल नहीं, शट अप एंड बेंड ओवर, वो वाला नहीं, वो नहीं। नहीं नहीं, ओके 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 ओके, हाँ नहीं नहीं, एकदम प्लीज, नहीं नहीं बेटा। ए हनी से आ रहा है तेरे को सखी बेटा? नहीं। अच्छा मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, सुन लो अच्छे से। एक वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब ऐसा होता है जो आसानी से वेपर बनाता है। नॉन वोलेटाइल जो आसानी से वेपर बनाता। अच्छा अभी मैं तुमको बताता हूँ, लड़की आप लोग को पता है वो नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हो ऐसी तो, आप कभी वो हाथ में लेके ऐसा रखना तो वो इवापोरेट हो जाता है क्या? मतलब वो आसानी से वेपर बनाता है, तो इट वेपराइजेस। ए बॉयज, आप लोग ने वो कभी आफ्टर शेव वगैरह देखा रहेगा, पापा का यूज करते रहेंगे, या तुम लोग ने भी किया रहेगा शेव कभी। तो वो आप हाथ में रख के ऐसा लिक्विड रखोगे तो अपने आप इवापोरेट हो जाता है, पता है कि नहीं? अच्छा पेट्रोल डीजल को भी हाथ में रखोगे तो अपने आप मतलब वो बोले बातें नहीं, बातें नहीं सुनो, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। थिंग्स विच वेपराइज इजिली आर नोन एज वोलेटाइल। अच्छा जो आसानी से वेपराइज होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम। सो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब जो आसानी से वेपर बनाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो। नॉन वोलेटाइल मतलब जो आसानी से वेपर बनाता, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। अच्छा अभी एक कॉमन सेंस है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या था? सपोज मेरे को तो वाटर है, वाटर का वेपर में लेके जाना है ना, तो वाटर के लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो मुझे क्या करना है? वो हीट अब सप्लाई करके वो उनका बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करने का है? ब्रेक करना है। तभी आप मेरे को बताओ, आयनिक कंपाउंड में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट? तो उसको बेटा मुझे गर्म करके अलग करने में काफी ज्यादा हीट देना पड़ेगा कि नहीं? तो देयरफॉर दे हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइल। कोवलेंट कंपाउंड क्या रहता है? याद आ रहा है ना? वीक वैन फोर्सेस, बोलो ना, वीक वैन फोर्सेस, राइट है बेटा? तो वीक वैन फोर्सेस रहेगा तो बेटा उसको हीट करेगा तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। देयरफॉर जनरली योर कोवलेंट कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है बेटा? देख यहाँ पे पढ़, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, ये देख वोलेटाइल क्यों रे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। यहाँ पे क्या है? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, सो दैट्स एनर्जी, देयरफॉर दे विल वेपराइज इजीली। आर यू गेटिंग इट? ये सब गिव रीजन में आएगा। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर आ जाते हैं, ए सुन ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर है? दैट बॉय व्हाट्स योर नेम बे? हाँ अक्षत ना? हाँ ए, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड अंडरगो विच प्रोसेस? डिसो। अच्छा बेटा मेरे को बता, मैंने ये आयनिक कंपाउंड लिया है, क्या लिया है बोल बेटा? ओके, NaCl। अच्छा NaCl में ऑलरेडी Na was पॉजिटिव एंड Cl was माइनस और नॉट, so ions are already present or not? Tell me.
Now what will happen if I put this? So these ions are getting what, beta? Separated, but which were already present. So separation of ions which are already present in the ionic compound is known as dissociation. It is known as Rishit beta. Now we'll go to the covalent compound. Covalent compound undergo which process? आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अभी तू मेरे को बताइए, क्या ये HCl कोवेलेंट कंपाउंड है कि नहीं? बोल बेटा, क्या इसमें ऑलरेडी आयंस है क्या? नहीं। इसको अगर बेटा मैं पानी में डालूंगा, किसमें? पानी में, तो मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन NCl माइनस आयन, और नॉट टेल मी। यहाँ पे आयंस क्या हुआ? फॉर्म्ड हुआ। और ये स्टार्टिंग में आयंस था क्या? स्टार्टिंग में ये क्या था? मॉलिक्यूल था। क्या था? और यहाँ पे आयंस फॉर्म्ड हुआ। आयंस आर फॉर्म। तो व्हाट, हाउ विल यू डिफाइन? इट इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट आयोनिक। और यहाँ पे क्या हो रहा है? सेपरेशन ऑफ आयंस। देख रहा है सेपरेट हो गया कि नहीं? विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट। क्लियर है? अच्छा, मैंने एग्जाम में लिखा NaCl अंडरगो विच प्रोसेस? NaCl कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड अंडरगो विच प्रोसेस? डिसोसिएशन। O2 H2 अमोनिया वाटर, दे अंडरगो विच प्रोसेस? आयोनाइज। लेकिन बेटा सिर्फ कौन जाएगा? पोलर ही जाता है आयोनाइजेशन में। एनीवेज, चलिए आपको समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत पड़ी? ये रिएक्शन लिखो उसके नीचे, अभी के अभी, समझने के लिए। अभी के अभी, अभी के अभी। बेटा अभी भी मैं बोलता हूं, आपका जो सीनियर बैच है, लिसन, अभी जिसने 10 दिया था डे बिफोर यस्टरडे, देयर पेपर वेंट रियली वेल। बहुत अच्छा गया, क्योंकि उनको जितना प्रैक्टिस कराया था पढ़ाते टाइम पे, तो मैं जैसा बोला वैसे ही फॉलो करोगे तो आपका भी उतना ही अच्छा जाएगा। क्लियर है? हाँ। बहुत सीनियर, बहुत सारे तुम्हारे जो स्कूल में सीनियर के बच्चों के फोन आए, बोले पेपर वेंट रियली नाइस एंड ऑल। बहुत अच्छा गया उन लोगों को। इजी ने, इजी किसके लिए? इजी किसके लिए होता है? जिसको पढ़ा नहीं, पढ़ा रहेगा उसके लिए इजी है। देखो बेटा, इजी था, बट टू स्कोर 80 on 80 इट वाज लिटिल चैलेंजिंग। 80 on 80 के लिए। ओके, ठीक है बेटा। अभी एक मतलब एक क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें अच्छा चलो बेटा, पहले आज मेरे को ये फिलहाल ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ये हो गया क्या बेटा? ओके, राइट। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ए हो गया ये कॉपी करके। रियार्थ बेटा, अभी देखो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता, आप गौर से देखिए ना, इधर सुनो ना। यहाँ पे देखो, पहले मेरे को बता, वायर में, वायर अपना ये वायर है बेटा, ये वायर में करंट कैसे फ्लो होता है? वायर में करंट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पता है ना बेटा? ये वायर है बेटा, वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ, इन वायर इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा, मैंने कोई भी ऐसा सोल्यूशन लिया, तो सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है? इसको पता है कुछ? पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, वहां पे भी करंट फ्लो होता है, बट कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। कितना समझ में आता है तुमको? हेलो, क्लियर है? लेकिन बेटा अभी सपोज बेटा मैंने मैंने ना यहाँ पे कंटेनर लिया है ऐसा, उसके अंदर बेटा मैंने सिर्फ क्या लिया है? सॉलिड NaCl लिया है। क्या लिया है? सॉलिड NaCl। फिर बेटा मैंने ऐसा कंडक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे पा पा, याद आ रहा है ना? कार्टून, पा पा पा, पॉजिटिव एनोड, याद रहा है कि नहीं? और कार्टून कैथोड नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव। इतना पता है कि नहीं? अभी बेटा मैंने यहाँ पे सॉलिड NaCl लिया है। क्या लिया है? सॉलिड, सॉलिड NaCl, सॉलिड। ठीक है बेटा रियाज, अब ये सॉलिड लिया है। अब यहाँ पे मैंने अगर बल्ब लगाया तो करंट पास होगा कि नहीं? सॉलिड NaCl होगा तो, सिर्फ सॉलिड NaCl लिया है, करंट पास होगा क्या? बल्ब जलेगा क्या? नहीं, क्योंकि करंट पास होने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? फ्री आयन। तो जब मैंने सिर्फ खाली ऐसा NaCl दिया है आपको, तो बेटा वो करंट, वो क्या है उसमें? अंदर फ्री आयंस नहीं है। तो बेटा कौन सा NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? अब मैं इसको NaCl को लिया, मैंने ये NaCl को मैंने एक बर्तन में लिया रे राजू। इसको फिर मैंने क्या किया बेटा, ये NaCl ऐसा था, बाहर से इसको मैंने तपाया, बहुत तपाया, मतलब आई हीटेड इट।
बरोबर है कि नहीं? तो ए हीट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बोलो बेटा। बेटा वैसे तो ये बहुत सख्त लौंडा था, वैसे तो ये बहुत, समझा ना, सख्त लौंडा, मतलब बहुत स्ट्रांग था। बट यहाँ पर वो यहाँ पर वो यहाँ पर वो पिघल गया, यहाँ पर वो पिघल गया मतलब मेल्ट हो गया। सॉलिड NaCl था, इसको मैंने हीट किया तो इट वाज वेरी स्ट्रांग, बट आफ्टर हीटिंग इट हैज बिकम मोल्टन और नॉट। तो ये जो मोल्टन फॉर्म में होता है, ये NaCl को मैं क्या बोलूंगा, मोल्टन। एक्वेस नहीं, एक्वेस मतलब पानी में डालते हैं, यहाँ पे पानी डाला है क्या मैंने, इल्ले। तो मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl, मोल्टन और ना, इसमें अभी फ्री आयंस है कि नहीं। अब बेटा मैं अगर इसके अंदर ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, बल्ब कनेक्ट करूंगा, तो बल्ब क्या होगा बेटा, ग्लो होगा। क्या होगा, मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, सॉलिड NaCl या सॉलिड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ओनली सॉलिड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड लिखा रहेगा, तो देन व्हाट यू विल से, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ give reason why solid NaCl is a bad conductor, because it does not have free ions। क्लियर है? अच्छा, मोल्टन और फ्यूज का मतलब क्या होगा, अंदर सिर्फ दो ही आयन है, Na प्लस है होगा, और कौन होगा, Cl माइनस। give reason solid NaCl is a bad conductor, whereas molten or fused is a good conductor, because in molten or fused NaCl we have free ions, but in solid NaCl we do not have। दिमाग में गया? चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। ये आगे ये इरेज कर दो बेटा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में तुमको बच्चा, अच्छी इधर आ जाओ। अच्छा, यक्वेस का मतलब क्या होता है, यक्वेस हनी सी, यक्वेस NaCl का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे क्या था बोलो बेटा, पानी पानी पानी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या डाला बाहर से, NaCl। यक्वेस का मतलब क्या रहता है, NaCl डिसॉल्व इन वॉच, NaCl डिसॉल्व इन वॉच। क्लियर है बेटा? अच्छा अभी सुनो, NaCl को मैं जब पानी में डालता तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना, NaCl को पानी में डाला तो मुझे क्या मिला रहेगा, Na प्लस और Cl। अब बेटा मेरा आप लोगों से प्रश्न है, गौर से देखो बेटा, मैंने ये पानी लिया है, इसके अंदर बेटा मैंने क्या डाल दिया है, नमक। तो बेटा इसके अंदर क्या बना, Na प्लस एन Cl माइनस, Na प्लस एन। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेबी। Na प्लस है और Cl माइनस है, तो Na प्लस Cl माइनस को देख सकता है कि नहीं, तो वापिस तूने, Na प्लस और Cl माइनस है ना, तो एक दूसरे को वापिस कंबाइन होके वापिस नमक बनना चाहिए कि नहीं, बोलो। हाँ तो अभी, हाँ अभी अभी इसमें मेरा मेरा ये बिल्कुल सुनो तो सही, Na प्लस और Cl माइनस है, तो वापिस दे शुड अट्रैक्ट एंड वापिस दे शुड फॉर्म नमक, बट ऐसा बनता है क्या नमक, तो क्या होता है उसमें, क्या होता है, हाँ वेरी गुड, समझ में आया। तुम लोग को मैंने पढ़ाया था भाई, हम लोग ने 9th में ये किया था बेटा, ठीक है ना बेटा, वाटर चैप्टर में। अरे बहुत अच्छी बात है बेटा, सुन लो बेटा। એ વિસ્કી અહીંયા જો ને બેબી શું કરે છે, અહીંયા જો ને દીકરા છે, हाँ बस, बस अभी मैं तुमको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बेटा। ये अपने पास कौन था बोल बेटा, Na प्लस था, कौन था, Na प्लस था, और फिर क्या था बोलो बेटा यहाँ पे। अच्छा आपको पता है क्या, आज ही हम लोगों ने पढ़ा था वाटर इज अ पोलार। तो बेटा अभी आपको पता है वाटर में ना बेटा, पोलार में ना, वाटर का ना ये, इस पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, याद आ रहा है कि नहीं। तो Na प्लस को हम लोग ने पानी में डाला, तो पानी क्या होता है, पोलार, तो Na प्लस को सराउंड करेगा, कौन से एंड से बोलो, वो ऑक्सीजन वाला एंड से, कहां से, वो ऑक्सीजन वाला एंड से, बरोबर है कि नहीं। अच्छा ये प्रोसेस को कोई भी पानी सराउंड करता है उसको कहते हैं हाइड्रेशन, ए झिंगुर, ए बाबा, इट इज Na प्लस इज सराउंडेड बाय वाटर, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। ए Cl को कौन सा एंड सराउंड करेगा बोलो बेटा, हाइड्रोजन वाला, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव, और Cl तुम्हारा क्या था। अब बेटा इन दोनों के बीच में कौन आ गया, इन दोनों के बीच में,
इन दोनों के बीच में कौन आ गया बोलो बेटा? Na और Cl के बीच में कौन आ गया बोलो बेटा? वाटर। क्या आ गया? तो बेटा अब ये क्या Na प्लस Cl माइनस को देख पाएगा? नहीं ना बेटा, क्योंकि उन दोनों के बीच में कौन आ चुका है? ये देखो। इसलिए बेटा पानी के अंदर Na प्लस और Cl माइनस के बीच में कौन आ गया? वाटर। तो अब Na प्लस Cl माइनस को देख पाता नहीं है। तो Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से क्या हो गए? जुदा हो गए। ठीक है, एक यहाँ पर और एक वहां पर। समझ में आ गया? एक यहाँ पर और एक वहां पर, और दोनों के बीच में कौन आ गया बोलो बेटा? वाटर। समझ में आ गया? और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना वाटर की, ए ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की, Na प्लस और मतलब दो आयंस को सेपरेट करने का, ये प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। वाटर हैज हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आया? देयरफॉर वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्लियर है? ओके। अच्छा अभी सुनो बेटा, बहुत मजेदार है। यही पानी को मैं अगर क्या करूंगा? हीट 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 बॉईल करूंगा। ये नमक वाला पानी ले दे, एक बेबी, नमक वाला पानी ले गरम कर। गरम करेगा तो बेटा कौन इवापोरेट हो जाएगा? Na प्लस, और ये पानी गायब हो जाएगा। ये पानी गायब हो जाएगा तो Na प्लस Cl माइनस को देख सकेगा। तो बाद में क्या हो जाएगा बेटा? वापिस नमक बनता है डिश में। या यही पानी को, आप नमक वाले पानी को धूप में रखो बाहर, तो पानी इवापोरेट हो जाएगा, तो NaCl को देख पाएगा, इसलिए वापिस डिश में क्या बचता है? नमक। समझ में आया? तभी बेटा कोई भी आपको पूछेगा नमक को पानी में डाला, तो आप बोलते हो कि डिजोल्व, तो खाली डिजोल्व नहीं बोलने का, यस इट डिजोल्व बाय, वो भी बताने का, बिकॉज वाटर इज अ पोलर, इट विल सराउंड Na प्लस एंड Cl माइनस, इट इज हाई डाइलेक्ट्रिक बॉन्ड एंड सेपरेटेड। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? NaCl इलेक्ट्रोवेलेंट था, पानी में डाला तो क्या हो गया बेटा? डिजोल्व। सो आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है? Why? Because water is a polar. अभी बेटा यहाँ पे देखो फटाफट बेटा, प्लीज बेटा वेट, वी ऑलरेडी लेट, वी स्टार्टेड लिटिल लेट, आई टेक अनदर 5 मिनट्स, बस बस चुपचाप 5 मिनट 4 मिनट्स आई टेक, अगर आप चुपचाप बैठोगे तो। देख बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख मैंने बात, देख दे आर गुड कंडक्टर ओनली इन विच स्टेट बेटा? फ्यूज्ड और मोल्टन और एक्वेस, बट नॉट इन, because in solid there are no free ions, but whereas in molten or aqueous state there are, therefore it can be electrolyzed only in molten or aqueous or fused state. नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है ना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट पोलर करेगा। क्यों? अभी हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं बेटा, HCl को पानी में डालेगा तो क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयंस। अमोनिया को पानी में डालता है तो अमोनियम आयंस। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड आर गुड कंडक्टर, व्हाई? बिकॉज दे अंडरगो आयनाइजेशन। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में कौन आता है बोलो बेटा? देख बेटा ये पानी में डिजोल्व क्यों होता है भाई? Ionic compound are soluble. Why? Because they have high dielectric constant. What was this beta? It was the capacity of water to enter between Na plus and Cl to break their strong force of attraction. Clear है? And to form free ions. Organic compound बेटा पानी में डिजोल्व होता नहीं है, ओनली एक्सेप्शन क्या होगा? पोलर। ये एक्सेप्शन कौन है बे? पोलर, हाँ भाई वो है अभी यहाँ पे एक्सेप्शन। पोलर क्यों रे? बिकॉज पोलर में फ्री आयंस बनेगा, आयनाइजेशन होगा। क्या होगा? तो देखो बेटा अभी ये सारे गिव रीजन देखो बेटा, सोडियम क्लोराइड इज हार्ड सॉलिड बट हाइड्रोजन क्लोराइड इज गैस, तो सोडियम क्लोराइड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या रहता है? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। Electrovalent compound are soluble in water but insoluble in organic solvent, while covalent compound are soluble in organic but insoluble in water. वो अभी रीजन बता दिया ना वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर ये सब भी आएगा कि नहीं आएगा बोलो बेटा? ये आज किया था। फिर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट NaCl इज, बिकॉज इट हैज अ फ्री आयंस। बरोबर है? व्हाई कोलेन कंपाउंड इन एग्जिस्ट गैस और लिक्विड? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। Carbon tetrachloride does not conduct electricity because it is a non-polar covalent compound and it does not have free ions. Ionic compound are high because they are held together by constituent particle of an ionic compound are ions and they are held together by strong electrostatic force of attraction. What do you understand by that lone pair of electrons? What it is? Unshelled pair of electrons which does not take part in chemical reaction or bond formation.
A shared pair of electron where both the electron come from same atom. Coordinate. Formation of ions from molecule. Ionization. Separation of ions from the molecule. Dissociation. Covalent bond formed by equal sharing. Non. By unequal sharing. अच्छा बेटा अभी मैं आपको बता देता हूँ सुन लो. क्लियर है. अच्छा ए लिसन केयरफुली. Next week, as we have discussed with your parent also, next week there will be no class Sunday. ठीक है ना बेटा. या तो स्कूल में कुछ एक वीक का छुट्टी है ना, तो some parents are traveling and all, और वैसे भी उस दिन गुड़ी पाड़वा भी है, so I am giving holiday on that day. Listen now, as I told, listen बेटा, एक मिनट शांति से सुन लो. As I told you all, okay, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग के बोर्ड में क्वेश्चंस कंबाइंड आते हैं. ओके, सो आपको 2 वीक का टाइम मिल रहा है. यू विल डू पीरियोडिक टेबल के बोर्ड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू है. आज केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया, उसका तुम्हारा बोर्ड क्वेश्चन बुकलेट मैंने जो दिया है, जिसको नोट्स नहीं मिला वो रुकेगा, बुकलेट जो मिला है वो. क्लियर है. एमसीक्यूज एंड बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स you have to do. No, you have to read. Board question you have to read. MCQ and other question, MCQ you have to solve. And I am going to keep a combined test. Combined ही होता है हमेशा. Periodic table and chemical वो मैं बताऊंगा बाद में. तुमको पढ़ के आना है बस. तो I am giving you 2 weeks time. हाँ, अच्छे से पढ़ना. ठीक है. 40 में से पासिंग मार्क्स इज 35. मेरा टेस्ट है. जिसके 35 के नीचे आएगा उसको पेपर 10-10 बार लिखने को मैं बोलूँ. ठीक है. चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी.